के बारे में सोच सकते ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब आइए हम उस वचन निकाले ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଆର ବାହାର କରିବା ବାଇବେଲରୁ। फिलिपियोस फिलिपियोस निकालिए उसका 3 का ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 18 पढ़े 18 ପର୍ବ। କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। फिलिपियोस कलीसिया को पौलुस ने लिखता है, ଆଉ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି। यहाँ पर लिखा है ଆଉ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଛି, कि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं, କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି उन्हीं की चर्चा में तुमसे बार बार मैं और अब रो कर कहता हूँ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି, कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बेरी है। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। फिलिपियोस के कलीसिया को पौलुस ने कहता है, ଆଉ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते थे, ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହୁଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। बहुत से उस कलीसिया में ऐसे चाल चलते थे, ଆଉ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ରଖୁଥିଲେ, उनकी चर्चा करते थे, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। और यहाँ पर लिखा, मैं तुमसे बार कही है, ଆଉ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ, ମୁଁ ଥରକୁ ଥର କହୁଅଛି, ଅନେକ ଥର କହୁଅଛି, अब भी मैं रो कर कहता हूँ ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି। कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस से बेरी हो। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, अपना चाल चलन के बारे में कहता है। ଆଉ ଏଠାରେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ, ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। हालेलुया। हालेलुया। अपना चाल चलन कैसा है उसके बारे में अपने को सोचिए। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। हर साल गुड फ्राइडे बनाते हैं। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରିଥାଉ। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, हमारा चाल चलन कैसा है? ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବା ଚାଲିଚଳନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? पौलुस कहता है, ଆଉ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, बार कहता है, ଆଉ ଥରକୁ ଥର ଅନେକ ଥର କହୁଅଛନ୍ତି, रो कर कहता ଆଉ है, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛନ୍ତି, आप उसके बेरी है। ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, हमारा चाल चलन कैसा है? ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ଅଛି? हमें कौन से रास्ता पे चल रहे हैं? ଆମେ କେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କରୁଅଛୁ? कई बार हम इसके बारे में सुनते हैं, ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। लेकिन अभी तक हम कई बार वचन सुनते हैं, ଆମେ ଅନେକ ଥର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, लेकिन हमारा चाल चलन अलग है। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଚରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି। हमें उसके बेरी हो रहे हैं, ଆମମାନେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ହେଉଅଛୁ। हमारा चाल चलन टेढ़ा मेढ़ा है, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଠିକ ନାହିଁ। हमारा बोलना उठना टेढ़ा मेढ़ा है। ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହିବାଟା, ଉଠିବାଟା, ଚାଲବାଟା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଲଗା ଅଛି। लेकिन मैं जज के सामने में आता हूँ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଜଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, उनके मीठे मीठे बात बोलता हूँ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହେ, लेकिन उसके पीछे आड़े में क्या करता हूँ, उसका बुराई करता हूँ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ ଖରାପ କଥା କହିଥାଏ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हम भी ऐसे स्वभाव के लोग हैं। ଆମମାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଏଇ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ हमारा चाल ଅଛୁ। चलन बिगड़े चुका है। ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବା ଆଚରଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଅଛି। पौलुस कहता है, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, 18 में कहता है, ଆଉ 18 ପର୍ବରେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, बहुत से ऐसे हैं, ଆଉ ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, अपने चाल चलन से ଆପଣ ଆଚରଣରେ, जिनकी उनकी चर्चा मैंने तुमसे बार की है, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଅଛି, और अब मैं रो कर कहता हूँ, ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ କହୁଅଛି। ଏବେ मैं अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के
पुरुष के बेरी है। ଆଉ ଆପଣ ଆଚରଣ ଯୋଗୁ ସେମାନେ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ हमारा चल चलन कैसा है? ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? क्या पहले जैसा चल चलन है? କି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି? कि अभी जो बुराई के चाल चलन में हम ଆଉ ଆମମାନେ ଯୋଉ ଖରାପ ଆଚରଣରେ ରହିଅଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି? मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ क्या उत्पत्ति किताब में कहता है? ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାର କୁହେ उसका तीन का 2 में कहता है। ଆଉ ତାର 3 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କୁହେ। 7 पढ़िए, 3 का 7 पढ़िए। ଆଉ 3 ର 7 ମୋ ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। 7 हाँ। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉଲ୍ଲଂଘନର ବୋଧ ପାଇଁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଂ ଘାଗରା ବନାଇଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इस वचन में लिखा है, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଛି जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ बुरे और ज्ञान के फल खाने के लिए मना किया था। ଆଉ ଯେ ସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳର ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ बुरे और ज्ञान का फल खाकर ଆଉ ସେ ସତ ଅସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଭୋଜନ କରି और उनको क्या हुआ, उसके साथ में लिखा है ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଖାଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା 7 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଛି ତୋରି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା उनके आंखें खुल गए ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା और लिखा है ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଛି तो मालूम हुआ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ कि वे नंगे हैं। ଆଉ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେ इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ कर ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡିମିର ବୃକ୍ଷର ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି लपेट बना लिया। ଆଉ ସେମାନେ ଘାଗର ବନାଇଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ पहले आयत हम पढ़े थे, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ପାଠ हमारा କରିଥିଲୁ चल चलन ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ बिगड़े हुए हैं। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଅଛି कई बार प्रभु के वचन सुनते हैं, ଆଉ ଅନେକ ଥର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ लेकिन हमें मन नहीं मिलाकर उसी चलते चलते हैं। ଆଉ ମାନେ କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ସେଇ ପଥରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଅଛୁ इस वचन में कहता है କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ବା କହୁଅଛି वो अपने पापों को छुपाने लगे, ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲାଗିଲେ अपने पापों को ढकने लगे। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇଲେ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ जब हम पाप करते बुराई करते हमें छुपाते हैं। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଥାଉ ପାପ କଥା କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଆମେ ଲୁଚାଇଥାଉ हमें कई तरह का गलत करते और छुपाते हैं। ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥାଉ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୁଚାଇଥାଉ। 7 आयत में लिखा है, ଆଉ 7ରେ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଛି खुल गए, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ उसको पापों को ढकने लगे, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲାଗିଲେ उसको पाप को ढकने लगे। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇବା ଲାଗିଲେ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ जब हम पाप करते हैं ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ उसको छुपाते ଆଉ हैं। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲୁଚାଇଥାଉ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ हमें कई बार हमें पाप को छुपाते हैं। ଆମମାନେ କେତେ ଥର ଆମ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇଥାଉ सालों सालों बार हमें पाप को छुपा रहे ଆଉ थे। ବର୍ଷ ଆମ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇଥାଉ लेकिन प्रभु यीशु ने देखा, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ परमेश्वर ने ଦେଖିଲେ देखा, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ और क्या ଦେଖିଲେ लिखा उसका पढ़िए, उसका 23 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? ଆଉ 3:23ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନେ ପଢିବା ଦେଖିବା इसका 23 में पढ़िए। ଏଥିପାଇଁ हाँ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦୋନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ हाँ, ଓ ସେ ଯେଉଁ କୃତିକାର ନିତ ହୋଇଥିଲେ ତହିଁରେ କୃଷି କର୍ମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। नहीं सॉरी 21 पढ़िए 21। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, ଆଉ ଏଠାରେ ଲିଖିତ ଅଛି यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए चमड़े के अंगर बनाकर उनको पिना दिया। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। लेकिन क्या है, आदम और हवा ने अपने पाप को छुपाने लगे। ଆଉ କଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ନିଜର ପାପକୁ ଆଦମ ହବା ଲୁଚାଇଲେ।
वो छुपाते थे, ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, लेकिन परमेश्वर को पता था। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା। परमेश्वर ने क्या किया? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? और वहाँ पर यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंबर बनाकर उनको पहना दिया। ଆଉ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦମ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। पाप को छुपा रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसको चमड़े से उसको छुपा दिया। ଆଉ ସେମାନେ ପାପକୁ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଚର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, हम कई बार अपने पाप को छुपाते हैं, ଆମେ ଅନେକ ଥର ନିଜ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ଥାଉ, लेकिन परमेश्वर वो उसको पाप को जितने छुपाते परमेश्वर देखता है। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଥାନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जिस तरह परमेश्वर चमड़े का अंगर बनाकर पहना दिया, ଆଉ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। आइए और एक वचन पढ़े। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା। इब्राहिम निकालिए, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9:11 पढ़िए। 9 पर्व 11 पद। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତ୍ତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଛାଗ ଓ କବଚର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, 12 पढ़िए। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ କିଣି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। हालेलुया। हालेलुया। उसके 12 में लिखा है, और बकरी और बकरी और बकरा लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा एक बार पवित्र किया, प्रवेश किया, और अर्थात छुटकारा प्राप्त किया। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ କିଣି हाँ, ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। हालेलुया। इस वचन लिखा गया है, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଛି, बकरा और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, अपने लहू के द्वारा एक बार पवित्र में प्रवेश किया। ଛାଗ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏକାଥରକେ ରକ୍ତ ଘେନି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ और କରିଅଛନ୍ତି। छुटकारा प्राप्त किया। ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। बकरे और बकरा का लहू के द्वारा नहीं, ଛାଗ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, क्या पर लिखा है, वे अपने लहू के द्वारा एक बार पवित्र किया। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିଜର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏକାଥରକେ ଅନନ୍ତର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यार बछड़े और बकरा के लहू के द्वारा नहीं, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କଣ, ଛାଗ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, अपने लहू के द्वारा। ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। हालेलुया। हालेलुया। अपने लहू के द्वारा एक बार हमें पवित्र किया, ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। और प्रवेश किया, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। हालेलुया। हालेलुया। अनंत का छुटकारा मिला है। ଆଉ ଅନନ୍ତର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, जब आदम और हवा ने जो पाप किया, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ପାପ କଲେ, और उसी से लेकर और से- शुरुआत होकर लेकर ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି कई तरह का बलिदान चढ़ाते थे। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। मेल बलि, हम बलि, पाप बलि चढ़ाते थे। ମେଲ ବଳି, ହାମ ବଳି, ପାପ ବଳି, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବଳି ଚଢାଉଥିଲେ। आइए और एक कुछ नाम पढ़ेंगे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। लेवी व्यवस्था उसका 17 का ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 17 का 11 पढ़े। कारण ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ हाँ। ଆମେ ତାହା ବେଦୀ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर प्राण के लहू में रहता है,
और उनमें से तुम लोगों को बंदी पर छुड़ाने के लिए तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया गया है, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। हाँ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ। हालेलुया। हालेलुया। पुराना जमाने में क्या होता था, काले का शरीर के प्राण से लहू से रहता था। ଆଉ ପୁରାତନ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, ପ୍ରାଣ କୋଉଠି ଥିଲା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। और उन्हीं में से तुम लोगों को वेदी बनाकर चुनाने के लिए तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाता था, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, हाँ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଏ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, जब पुराना समय में ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ସମୟରେ बछड़ा भेड़ सबको क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ଆଉ ଶାଗ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ବଳି ଚଢାଉଥିଲେ, क्यों बलि चढ़ाते थे? କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତର ବଳି ଚଢାଉଥିଲେ? जो पाप करते थे क्या करते थे, मंदिर में जाकर बलि चढ़ाते थे। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ନେଇକିରି କଣ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକିରି ବଳି କରୁଥିଲେ। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, भाई आएंगे इब्राहिम उसके नौ निकालिए। ଏଭ୍ରି ପର୍ବ 9 ପର୍ବ ମାନ ବାହାର କରିବା। ଏହି ପ୍ରଥମ ତମ୍ବୁ हाँ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ତଦନୁସାରେ ଦାନ ଓ ବଳି नहीं 9 का 22 पढ़िए। 9 ର 22 ପର୍ବ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, हाँ ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। बस हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में कहता सच वही है कि व्यवस्था के अनुसार पाए सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अपनी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, उस समय व्यवस्था था। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, व्यवस्था के द्वारा लहू के द्वारा क्या करते थे, शुद्ध किया जाता था। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। बिना लहू पाए पाप क्षमा नहीं होती है। ଆଉ ବିନା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ବିନା ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହଉନଥିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। व्यवस्था के द्वारा यहाँ पर लिखा है, सच वही है कि व्यवस्था के अनुसार पाए सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ। बिना लहू पाए पाप क्षमा नहीं होती है। ଆଉ ବିନା ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉନଥିଲା। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, जब हमें आदम और हवा ने जो गलती की, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ପାପ କଲେ, उस समय में कई तरह का बलिदान हुआ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେଲା। उन बलि के द्वारा हमेशा और पाप नहीं क्षमा होती थी, ଆଉ ସେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଉନଥିଲା। क्योंकि वो बार जो पाप करते थे बार बलि चढ़ाना पड़ता था। ବହୁତ ଥର ପାପ କରିକି ଯେତେ ଥର ପାପ କରୁଥିଲେ ସେତେ ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଚଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଡୁଥିଲା। लेकिन आप और मेरा यीशु ने କିନ୍ତୁ ମୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ उनके लहू के द्वारा ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା हमें सारे पाप से आजादी मिला। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। हम अंधेरा में थे ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ और हमें और दलदल कीचों में थे, ଆମମାନେ ଦଲଦଲିଆ କାଦୁଅରେ ଥିଲୁ। लेकिन मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, यीशु के लहू से आपको और मुझे खरीद लिया है। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। यीशु के लहू के द्वारा वो पाप से क्षमा मुक्ति मिला है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଷମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ना तो बछड़ा से, କି ବାଛୁରୀରେ ना बैल से, କିମ୍ବା ବଳଦରେ,
कहीं से रक्त के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है? पाप का क्षमा मिलता है। कौन से अन्य रक्त न्यो केवल परमेश्वर को रक्त द्वारा अमान को पापरु अमान को क्षमा मिलता है। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने जब यीशु के लहू से हमको सबको खरीद किया है, अमान को समस्त को तांकरी रक्त द्वारा प्रभु यीशु कृष्ण को रक्त द्वारा कृत करी अछंती। खरीद हुए लोग हैं। अमाने कृत दास ओटू यीशु ने प्रभु यीशु कृष्ण आपसे मुझे बहुत प्यार किया, अमान से बहुत प्रेम कले, उनके सारा लहू बहा दिया, और तांकर से समस्त रक्त को झराइले, उनके शरीर से और तांको शरीर रो जो बच्चा मारे और जो बच्चा जेतेबेला आघात करागला वहां से पानी निकला। और से थारे सो जल बाहरिला। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने जब यीशु ने जेतेबेले प्रभु यीशु कृष्ण अपना लहू अपना रक्त उस पर बहाया क्रूसरे जेतेबेले बुहाइले और हमको खरीदा है। अमान को किणिले। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने जब यीशु ने हमको खरीदा हुआ है, जेतेबेले प्रभु यीशु कृष्ण अमान को किणिले। आया और एक वचन हम पढ़ेंगे, आसंतो आओ एक वाक्य पाठ करिबा। उसका 28 पढ़िए, 9 का 28। हां, ताहा परे विचार निरूपित अछि, सेही परि ख्रीष्ट मध्य 9 का 20। पढ़ो। आओ ताहा परे विचार निरूपित अछि, सेही परि ख्रीष्ट मध्य अनेकଙ୍କ पाप बहन କରିବା निमन्ते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे, बरं जोमाने ताहाଙ୍କ अपेक्षाରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में लिखा है, और वाक्य रे प्रकार लिखित ऐसे अछि। ही मसीह ने बहुत के पापों के उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और सेही परि ख्रीष्ट मध्य अनेकों को पाप बहन करिबा निमन्ते थरे मात्र उत्सर्गीकृत हेले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दोबारा बलिदान नहीं होने वाला है। और प्रभु यीशु कृष्ण पुनर्बार क्रूसरे बलिदान हेबे नहीं। एक बार ही बलिदान हुआ है। एक मात्र थर बलिदान होई अछंती। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने एक बार बलिदान हुआ, प्रथम थर बलिदान हेई अछंती। उनकी बात जोड़ते हैं, उनकी बात जोड़ते हैं। जो माने तांकर अपेक्षा करंती उनके लिए उद्धार के लिए दूसरे के पास पाप उठा लिया जाएगा। सेमानकर परित्राण निमन्ते प्रभु पुनर्बार दर्शन देबे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने इस वचन में लिखा है, आ वाक्य रे प्रकार लिखित अछि। जो लोग उसकी बात जोड़ते हैं, और जो माने तांकर अपेक्षा करंती उनके उद्धार के लिए दूसरे बार फिर पाप उठाए हुए दिखाई देगा। द्वितीय थर से अमान को पाप सकाश नहीं, बरं जो माने तांको अपेक्षा रछंती सेमानकर परित्राण निमन्ते से पुनर्बार आसीबे बा दर्शन देबे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने इस वचन कहता है, और वाक्य प्रकार कहे मसीह बहुत के लिए पाप को उठा लेने के लिए एक बार मरा। और समस्त पाप निमन्ते से गोटे थर मरिथिले। हालेलुया, हालेलुया। वैसे मसीह बहुत के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जे प्रकार अनेकको पापन गरिबा निमन्ते से थरे मात्र मृत्युवरण गरिथिले। हालेलुया, हालेलुया। तो वर्ल्ड के लिए परमेश्वर ने क्या एक बार ही बलिदान हुआ। और ये पृथ्वी समग्र पृथ्वी निमन्ते से एक थरे मात्र क्रूसरे से प्राण त्याग गरिथिले। जो लोग उसकी बात करते हैं, और जो माने तांकर अपेक्षा करंती उनके लिए दोबारा बिना पाप उठा लिया जाएगा। से मानको सकाशे पुनर्बार से माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे पुनः उठाई नेबे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? तेबे अमान को कोन करिबार अछि? उनके बात जोड़ना है। और तांको अमान को अपेक्षा करिबा निमन्ते। हालेलुया, हालेलुया। किसका बात जोड़ना है? कार अपेक्षा करिबार अछि? यीशु का बात जोड़ना है। प्रभु यीशु ख्रीष्टकर अपेक्षा करिबार वो अछि। दोबारा आएगा। से पुनर्बार आसीबे। क्यों आएगा? कोन पय आसीबे? जो उसका बात जोड़ेंगे, और जो माने तांकर अपेक्षा रे अछंती उसको उठा लिया जाएगा। और से मान को उठाई नेबे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने जो यहोवा का जब बात ना जोड़ेंगे, और जेते बेले अमान परमेश्वर को अपेक्षा जदि न करू तो
तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, छोड़कर चला जाएगा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଆଉ ପଢାଇବେ। बाट जोड़ना मतलब क्या है? ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? मेरे प्रार्थना में, आराधना में, पवित्रता में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का बाट जोड़ना है। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, ତାଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରି ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। लेकिन जो पहले जो वचन पढ़े थे, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଠ କରିଥିଲୁ, लेकिन अपना चाल चलन को बिगड़ा हुआ है। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଅଛି। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, यीशु के लहू के ही समान है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ, उसी लहू के द्वारा हमको खरीदा हुआ है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। उसके ଆଉ लहू ସେ के द्वारा छुटकारा मिलता ଆଉ है। ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। उसके लहू के द्वारा मुक्ति मिलता है। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। उसके लहू के द्वारा उद्धार मिलता है। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, यीशु ने उस पर न मरा होता ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, तो अभी तक हमें पाप में पड़े रहते। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେଇ ପାପରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। यीशु ने क्रूस पे मरा, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଲେ, उसने अपना लहू आया, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, इसलिए खुदा ने हमें उसके लहू से हमको मतलब खरीद लिया। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଲେ। प्रभु ये वचन को जरा सबको आशीष करे। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।